मोहब्बत को मैंने सरकारी दफ्तर समझ लिया, फॉर्म भी भर दिया पर अप्रूवल अभी तक नहीं मिला। वो तेरा रास्ता अब कहीं और घूम जाता है और मैं उसकी याद में कुछ ऐसा खोया रहता हूँ, कोई भी आता है और मुझे चूम जाता है। Really afraid of comedy, and that's what I wrote about it. Now my comedy starts, but my time has been delayed. ना जाने क्या हो जाता ನಾ ಬರೆಯೋ ಪ್ರತಿ ಪದದಲ್ಲೂ ನೀ ಇರುವೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬರಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನೀನು ಸೋಲುವೆ, ನನ್ನ ಮಸಿಯಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಚಿಗುರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಧುರವಾಯಿತೆ ಇತರರ ಬರಹದ ಪೊಗರು. So basically, I'm Kannada poet. I call myself Adhinika Kavi, when I write the recent events, also about love, about breakup, and about life also. So the first poem I'm going to present today is again a love breakup. People will nowadays, I know why breakups are more. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಜೀವಂತ, ಬೇರೆಯವರ ಕವನಗಳು ಆಗ್ತವೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಶಾಂತ. ನೀ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಿನ ದನಿ, ಇನ್ಯಾರ ಕವಿತೆ ಬಂದರೂ ಗೆಲ್ಲೋದು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಕತೆ, ಓ ನನ್ನ ಕಲಮದ ರಾಣಿ, ಓ ನನ್ನ ಕಮಲದ ರಾಣಿ. So this is what I meant was, I'm explaining her that I am the good poet to you, not others, because I loved her so much that she was one to me and I don't want to miss her. So on that basis I written this. And next, only poets can do this, right? Where you can compare the love to sun and moon. So I've written on this. It goes like this. ಸೂರ್ಯನು ಮಂದಹಾಸ, ಚಂದ್ರನು ಮೃದುವಾಸ, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹವಾಸ. ಇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವೇ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕಾಸ, ಬರುವ ಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಹೃದಯಗಳು ನಿಂತಿವೆ ಒಂದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ, ದಿನವೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿತು, ದೂರದ ಪ್ರೀತಿಗಾಡ ಎಂದು ರಾತ್ರಿ ಹಾಡಿತು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸೇರಲಾರೆವು ಎಂದರು ಜಗತ್ತಿನ ಜನ, ಮನವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿತು ಪ್ರೀತಿಯ ನಾದವೇ ನನ್ನ ಜೀವನ, ಪ್ರೀತಿಯ ನಾದವೇ ನನ್ನ ಜೀವನ. Again, another breakup. So it goes like this. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ನಗು ಕಾಣುವಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸೇ ಬದಲಾಯಿತು, ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ನೋಟವೇ ಸಾವಿರ ಕತೆ ಹೇಳಿತು, ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ನನಗೆ ಕಾಲವೇ ನಿಂತದ್ದಾಯಿತು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಹರಡಿವೆ, ನಿನ್ನ ನಗುವಿನ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ದಿನದ ಹಾಡಾಗಿದೆ, ನೀ ಜೊತೆ ಇರುವ ಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. So this means she is life of mine, which never ever forgetful. So this one I told long back in English, wherein even boys do cry, right? So no one can say that you are mard hai to ro nahi sakta. I mean, you are a boy, that doesn't mean that you can't cry, right? So on that basis I have written this in Kannada. ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಹುಡುಗರು ಅಳಲ್ಲ ಅಂತ, ಒಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮಳೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಷ್ಟು ಅಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಎತ್ತು ಹಿಡಿದಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ನಗುತ್ತಾ ನಡೆಯುವರು ಒಳಗೆ 100 ಕತೆ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೃದಯ ಬಿಗಿದು ನೋವನ್ನ ನಗುತ್ತಾ ಅಡಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ನೋವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ, ಅವನ ಮೌನದ ಹಿಂದೆ ಸಹ 1000 ಮಾತುಗಳಿವೆ, ಹುಡುಗನ ಕಣ್ಣೀರು ಯಾರಿಗೂ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣೀರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧವಾಗುವುದಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅವನೇನು ಹುಡುಗ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹೃದಯವು ತೂಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ, ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. My favorite is singing, but in singing I am singing now different style. All are know Twinkle Twinkle Little Star. In Twinkle Twinkle Little Star, different voices. See, same Twinkle Twinkle Little Star in my elder sister singing like this style. Twinkle, twinkle.
star, how I wonder what you are. Up above the hills so high, like a diamond in the sky. In same Twinkle Twinkle Little Star, my another sister singing like Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the hills so high, like a diamond in the sky. In same song, my grandmother. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the hills so high, like a diamond in the sky. Twinkle twinkle little star. Thank you. In sing Twinkle Twinkle Little Star, my lecturer sing like in teaching style. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the also high, like a diamond in the sky. In same Twinkle Twinkle Little Star, in a devotional style. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the also high, like a diamond in the sky. Thank you. Same Twinkle Twinkle Little Star in movie singing style. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the also high, like a diamond in the sky. Twinkle twinkle little star. Thank you. In same Twinkle Twinkle Little Star in Punjabi style. Twinkle little star, how I wonder what you are. Twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the also high, like a diamond in the sky. Twinkle little star, how I wonder what you are. How I wonder what you are. In same Twinkle Little Star, another song time. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the also high, like a diamond in the sky. In same, these are Twinkle Twinkle Little Star song. And one day I will go to train. Most of the train voices same time. Idli, anda biryani, veg biryani, water, chapati. Thank you. ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರನಟರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಇವಾಗ ಕೇಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿಗೆ ನಾನ್ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಮೊದಲಿನ ಸರಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರಾಟೆ ಕಿಂಗ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾ ಜೂನಿಯರ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಾಸ್ಯ ನಟ ನಮ್ಮ ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಅಲ್ಲತ ಶಿವ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಶಿವ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೇರಿಲ್ಲ ಶಿವ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಿವ, ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕನ್ನಡದ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಜೋನಿಯರ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ
ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्न लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, हो उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का, कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, न पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का।
और किसी का, मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। चिंगारी चिंगारी खुदा ने कहा अक्षय से दोस्ती न कर, खुदा ने कहा अक्षय से दोस्ती न कर, दोस्ती में तू कहीं खो जाएगा। मैंने कहा है खुदा नीचे आके तो अक्षय से मिल, तू भी ऊपर जाना भूल जाएगा। एक शेर आके, इस दिल को मैंने लाख समझाया कि अक्षय को याद करना छोड़ दे, इस दिल को मैंने लाख समझाया कि अक्षय को याद करना छोड़ दे, पर दिल के हर कोने से आवाज आई, अरे बेवकूफ वो तो हर सांस में बसा है, तो क्या सांस लेना छोड़ दे। ಅವಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಅವಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಅವಳು ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ। ಒಂದು ದಿನ ದಾರಿಯು ಕೇಳಿತು, ಓ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೇ ಸಾಗುವೆ ನೀ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಈ ದಾರಿ ಸಾಗುವುದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ। ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವ ಅಮಾಯಕನೇ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವ ಅಮಾಯಕನೇ, ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಅಸ್ತ್ರಗಳು, ಮರಳಿ ಹೋಗು ನೀನು, ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಷ್ಟಗಳು, ನೂರಾರು ಕಷ್ಟಗಳು। ನಾನು ದಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಓ ದಾರಿಯೇ ಆದರೂ ನಾನು ನಡೆಯುವೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಓ ದಾರಿಯೇ ಆದರೂ ನಾನು ನಡೆಯುವೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ, ಹಿಂತಿರುಗಲು ನಾ ಕಾದಿವೆ ಆ ನರಕದಂತಹ ನೆನಪುಗಳ ದಂಡನೆ। ಹೇಳು ನೀ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಹೇಳು ನೀ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ। ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಸಾವಿರಾರು, ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಸಾವಿರಾರು, ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿತು ನನಗೆ ಮೋಸದ ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದೇ ಮುಳ್ಳು, ಮೋಸದ ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದೇ ಮುಳ್ಳು। ನರಳುವ ನರಕ ಕಾಡುವ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು, ಬದುಕಲು ಬಿಡದ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುವ ಬದಲು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುವ ಬದಲು, ಕೊಂದು ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು। And this is for Hindi audience. एक वक्त के बाद वो भी बदल गया, जो कहा करता था बदल जाना उसकी फितरत में नहीं, तो आज उसकी फितरत पे लिखा है, तू बदल गया समझ नहीं आया क्यों, तू बदल गया समझ नहीं आया क्यों, हमारे दर्द को भी कभी समझा नहीं क्यों। अगर जब तू बदल गया तो सुन मेरी एक बात, जीने का मन नहीं अब सिर्फ खामोशी है साथ, खैर बदल जाना ही तेरा खंजर था, खैर बदल जाना ही तेरा खंजर था, तो उसके वार के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर देता, पर ए जालिम, पर ए जालिम तेरी नजर इस मासूम दिल पर गिर गई, इस मासूम दिल पर गिर गई। खैर उसकी बदल जाने की वजह कोई और ही था, जो मुझसे ज्यादा ही अजीम था, और मैं था मोहब्बत का एक गरीब, और मैं था मोहब्बत का एक गरीब, और वो था जिस्म का एक अमीर, वो था जिस्म का एक अमीर। खैर कुछ भी न था पास मेरे मोहब्बत के सिवा, खैर कुछ भी न था पास मेरे मोहब्बत के सिवा, सब कुछ था पास उसके मोहब्बत के सिवा। तो बताओ क्या रोऊं मैं अब मेरी इस बदकिस्मती पर, बताओ क्या रोऊं मैं अब मेरी इस बदकिस्मती पर, या खुश रहूं वो मेरे मोहब्बत के काबिल न था, मेरे मोहब्बत के काबिल न था। तो बात यह है कि रूह तक तो उतर गया था प्यार में तेरे, रूह तक तो उतर गया था प्यार में तेरे, बताओ हद क्या थी इश्क के इसके आगे भी, वफा के नाम पर हमने साथ मांगा था जिंदगी भर का, वफा के नाम पर साथ मांगा था जिंदगी भर का, क्या बताओ जिस्म को छू कर छोड़ना भी था तुम्हें मोहब्बत के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे। तो लास्ट में मुझे बस इतना ही कहना है,
आसान नहीं होती राहे इश्क की तलाश, आसान नहीं होती राहे इश्क की तलाश, इश्क मिल भी गया तो पाना मुकद्दर में नहीं होता, पाना मुकद्दर में नहीं होता। सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। இனக்கெனவே நீ கிடைத்தாய், இனதுறவே இனதுறவே கடவுளைப் போல் நீ முளைத்தாய், நெடுஞ்சாலையில் படும் பாதம் போல் சேர்கிறேன் வாழும் காலமே, வரும் நாட்களே தரும் பூக்களே, நீடுமே காதல் காதல் வாசமே. எனதுயிரே எனதுயிரே எனக்கெனவே நீ கிடைத்தாய், எனதுறவே எனதுறவே கடவுளைப் போல் நீ முளைத்தாய், இனி இரவே இல்லை கண்டேன் உன் விழிகளில் கிழக்கு திசை, இனி பிரிவே இல்லை அன்பே உன் உலரலும் எனக்கு இசை, உன்னை காணும் வரையில் எனது வாழ்க்கை வெள்ளை காகிதம், கண்ணால் நீயும் அதிலே எழுதி போனாய் நல்ல ஓவியம், சிறு பார்வையில் ஒரு வார்த்தையில் தோன்றுதே 100 கோடி வானவில். எனதுயிரே எனதுயிரே எனக்கெனவே நீ கிடைத்தாய், எனதுறவே எனதுறவே கடவுளைப் போல் நீ முளைத்தாய். ஆ மரம் இருந்தால் அங்கே என்னை நான் நிழலென நிறுத்திடுவேன், இலை விழுந்தால் ஐயோ என்றே நான் உதறலும் எனக்கு இசை, இனிமேல் நமது இதழ்கள் இணைந்து சிரிக்கும் ஓசை கேட்குமே, நெடுநாள் நிலவும் நிலவே கலங்கும் துடிக்க கைகள் கோர்க்குமே, ஒரு வாக்கினாய் அதிகாலையை ஆகவே நீ என் வாழ்வின் மோட்சமே. எனதுயிரே எனதுயிரே எனக்கெனவே நீ கிடைத்தாய், எனதுறவே எனதுறவே கடவுளைப் போல் நீ முளைத்தாய், நெடுஞ்சாலையில் படும் பாதம் போல் சேர்கிறேன் வாழும் காலமே, வரும் நாட்களே தரும் பூக்களே, நீளுமே காதல் காதல் வாசமே. थैंक यू। दिल को थाम के रखिए, अजरा अभी परफॉर्म करने वाली है। नहीं, कोई था नहीं मेरा इंट्रो देने के लिए, तो इसीलिए मैंने ही कुछ इंट्रो दे दिया। That's okay man, carry on। तो एक सैड सी पोएट्री है, आप सबने अभी कॉमेडी किया, म्यूजिक सुना, पोएट्री सुना, तो एक सैड सी पोएट्री लेके आई हूँ। वो पोएट्री होपफुली आपके दिल को छू जाए, इसी की तवक्को रखती हूँ।
ये एक्चुअली ये ट्रू इंसिडेंट पे मैंने लिखा था। जब हमारे पेरेंट्स कितने अहम होते हैं हमारी लाइफ में ना, हमारे माँ बाप, दे आर सो 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 इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। उनके बिना एक पल भी जीना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है कि हम सोच नहीं सकते। तो थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि यू लॉस्ट योर वन ऑफ पेरेंट, मदर या फादर, तो किस तरह होगा वो दर्द। So recently, in the end of the October, my friend lost his father. He was the only one pillar left. 1 year back, she lost her younger brother, who is just 22-23 years, in cancer. And this year, she lost her father. And earlier, when she was child, she lost her mother. The only one pillar also she lost, and now she is shattered in tears. She could not able to speak us also, being so close to us. So just imagine how she is feeling. तो उसी के ऊपर मैंने ये पोएम लिखी थी। पोएम का नाम है बाबा, द फाइनल कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट टॉक्स। तो लिखा था, बाबा, जिंदगी के सफर में अकेले चल पाऊंगी क्या? बाबा, तेरे बिना आगे बढ़ पाऊंगी क्या? मेरे चोट पे मरहम कौन लगाएगा? प्यार से मेरे सर पे हाथ कौन सहलाएगा? रात की कड़कती हुई बिजली पर किसे गले लगाऊंगी? अब बाबा कहकर मैं किसे बुलाऊंगी? यूं देखा ना था सोना मैका मेरा, तेरे ना होने से चमन भी है उजड़ा हुआ। तेरी रवानगी देखती हूँ मुझे हर जगह, तू ही बता कैसे छीन लाऊं तुझे यहाँ। मेरा वजूद का हर हिस्सा है टूटा हुआ, तेरे आशियाने में नजर आता है मेरा बचपन बीता हुआ। उंगली थामे हुए मुझे चलना तूने सिखाया था, कांधे पे बिठा के ये दुनिया दिखाया था। कैसे भूल पाऊंगी तेरे ना होने के एहसास को, वो यकीन कहाँ से लाऊंगी जो मिलता था करके तुझे गुफ्तगू। बाबा, जिंदगी के सफर में क्या आगे बढ़ पाऊंगी? अब बाबा कह के किसे बुलाऊंगी? हाँ, फोन दे दे। मेरा फोन दे दे बाबा। सॉरी। तो अगली पोएम है मेरी, एक लड़की, दिस इज ऑल्सो ए ट्रू इंसिडेंट। 5 years बैक एक लड़की, हमारे में मुस्लिम्स कम्युनिटी में ऐसा होता है, खुला लेते हैं, सेपरेशन होता है, डाइवोर्स होता है इंग्लिश टर्म्स में। तो लड़की ये कोशिश कर रही है कि व्हेन शी इज गेटिंग सेपरेटेड, फिर भी वो उम्मीद लगा रही है कि कुछ होगा, नहीं ये सेपरेशन नहीं होगा, इसमें भी शायद कुछ चमत्कार हो जाए, मैं अपने हमसफर के साथ शायद जिंदगी बिता पाऊं। सो शी इज प्रेइंग फॉर दैट थिंग, मगर वो हो ना सका। तो उसी पे मैंने लिखा था, भोली सी लड़की, हिजरी के दौर में तुम खूबसूरत सफर चाहती हो, बड़ी भोली हो, अभी भी वफा चाहती हो। ख्याल उसका दिल में रख के मिटा देना, ख्यालों में जो मिलता है सितमगर उसे ना बता देना। कहे कहे लगाने को वो भूल जाएंगे, हंसने वाले कहाँ तेरा दर्द पाएंगे। गले लगा के दिलों को तोड़ देते हैं, अपना कहते कहते खंजर मोड़ देते हैं। मेरे मानो एहतियात रखना, सुना है सफर के साथी अक्सर अपने सफर मोड़ देते हैं। So this is the situation when she gone through that all separation. मुझे ना लाइफ में सीरियसली मोहब्बत पे यकीन नहीं होता, पता नहीं शायद हुआ नहीं है, या मैंने इतना कुछ सेपरेशन देख लिया है कि अगर चाहूँ भी यकीन करना तो यकीन मुझे नहीं होता। तो मैंने उसी पे लिखा था, फूल और अंगारे, मैं चलती थी अंगारों में, उसने कहा था फूल रखेगा, भला मोहब्बत में इतना क्यों धूल रखेगा। नमाज फर्ज ना होती थी खजा उससे, मुझे क्या पता था वो तस्बीह पे हाथ रखने से भी डरेगा। कसूर निगाहों का दिल ने सजा पाई, जफा करके दगा पाया, फिर सीरत में भी ऐब निकाली। भला कैसे भूलूं मैं ये खूबसूरत गुलदस्ते, कमाई अपने दोनों हाथों से कभी उसने मुझ पे लुटाई। अब हाल है ऐसा, कांटों की बाढ़ और राह गुजर है,
कमसीन उम्र की गलती ना जवानी की लाश है और निकली हुई जान है। सो गाइस, आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, आप सभी मुझे आंसर करना। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? पहेली। करेक्ट। जिंदगी एक पहेली है। कभी हम यहाँ रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, तो उसे पहेली को हम सुलझाने में इतना टाइम लेते हैं कि उस फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड में हमारी लाइफ पे कुछ भी हो सकता है। अभी हम यहाँ मौजूद हैं, किसे पता आफ्टर हाफ एन आवर वी आर नॉट हियर, वी आर नॉट इन दिस वर्ल्ड। अरे तो जी बात, तुझे 100 ईयर्स लगेंगे, मेरे भी मुझे जीना। तो उसी को लेके मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी थी, आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ। राहे सफर का अंजाम किसने देखा, मैं जी रही हूँ आज, कल की शाम किसने देखा। जो रहमत होगी उसकी कल भी जी लेंगे, तुझे गले भी लगा लेंगे, अपना गम भी सुनाएंगे। सुना है जिंदगी एक सफर है, इसे जीते जाना है। कल की फिक्र में अपने आज को नहीं गवाना है, लब से अपने उसको शुक्र करते रहना है। जो पहुंचेंगे 60 साल तक, मुझे आकर जरूर मिलना है। तो जिंदगी यही है मेरे हिसाब से। तो हेलो गाइज, मेरा नाम रंगन है। तो वैसे तो मैं पेशे से बिजनेस एसोसिएट हूँ, पर ऐसे ख्यालों को पन्नों में उतारने की बुरी आदत है। तो 2 कविताएं आप लोगों के लिए। तन्हाई की आदत कुछ इस कदर पड़ी कि अब इस महफिल से मेरा दिल ऊब जाता है। मैं बेसुरा ही सही आवाज तो मेरी, लेकिन ये जानकार कहते हैं वाकया खूब गाता है। कोशिश की क्षमा से दुनिया रोशन कर सके, लेकिन शाम ढलते ही सूरज डूब जाता है। रात की चादर ओढ़े आसमां भी पूछता है, वो तेरा रास्ता अब कहीं और घूम जाता है। और मैं उसकी याद में कुछ ऐसा खोया रहता हूँ, कोई भी आता है और मुझे चूम जाता है। दूसरी कविता, इसका नाम है कांच। कांच टूटा था, पर ऐसे बिखरा जैसे कोई सितारा गलती से आसमान से गिर पड़ा। हर टुकड़ा एक नई कहानी बन गया, हर किरण में एक नया आकाश खुल गया। मैं भी कभी एक मुकम्मल आईना था, जिसमें लोग अपने चेहरे संवारते थे, अपने आंसू छुपा लेते थे, कभी कभी खुद से बातें भी करते थे। फिर अचानक एक झोंका आया, या शायद जानबूझकर किसी ने मुझे ऊंचाई से गिरा दिया। अब मैं फर्श पर पड़ा हूं। हर टुकड़े में कोई पुरानी याद उलझी है, कोई आंखों में भर के ले जाता है, कोई पैरों से कुचलकर गुजर जाता है। मैं चाहूं तो चिल्ला भी नहीं सकता, क्योंकि कांच टूटने के बाद बोलते नहीं, बस चुपता है। रात में जब चांदनी गिरती है, मेरे ये टुकड़े और चमक उठते हैं। लोग दूर से देखते हैं, पर पास आने से डरते हैं। शायद इसीलिए टूटे हुए कांच को कोई हथेली में नहीं रखता, बस ठोकर मारकर आगे बढ़ जाता है। एक और कविता ऐसे आज सुबह लिख रहा था, तो चलते हैं जो उसूलों पे, पाँव में उनके छाले हैं, सफेद कमीज वालों के ही गिरेबान काले हैं। ईमानदार हर व्यक्ति नहीं होता, लेकिन हर ईमानदार व्यक्ति के घर पे पैसों के लाले हैं। सब सगे होते नहीं इस दुनिया के मकान में, सबने कहीं ना कहीं एक सांप पाले हैं। बच्चे समझते नहीं माँ बाप के दुख को कभी, बच्चों के मुंह में भी माँ बाप के ही निवाले हैं। मजबूरी उस बेटे की कुछ कर पाता नहीं है, जिस बेटे के सीने में अंगार और ज्वाले हैं। थैंक यू। So, first of all, I would like to thank Asri Gani provides Backyard Studio Production for providing this beautiful open mic. And I would like to also thank these 2 hosts for doing such a wonderful job. Your Shairi was also very good. Your You were talking about me, huh? Yes, sir. He was talking about me. Yes, yeah. Do you like to know what? Okay. So, okay. This is fine. So, okay, so I would like to continue my host appreciation. So, second, it was very good, and 1 to 9 was very good. It was very amazing. I just couldn't. After 9, it again went to 3. That I didn't understand that.
and yours also was very good. Your Shairi was very good. And because my content is very slow, I will also appreciate the audience. Because thank you for being such a lovely audience, and I hope you guys laugh and laugh out loud. And thank you for being such a support. I will also thank Samdabaya. You're so very good. When also cry if he roasts me more, I also will cry. And yes. अभी शो बाकी है, थैंकिंग स्पीच बाद में देते Oh, हैं. yeah, because the thing is, my set is small, and I have 7 minutes. So that's the problem. It is small. I have time, Maya. Yeah, you have. You can just do like one. And I will do like fast thing. Yes, your that grandma sound was fabulous, and that train also was super. And I wrote something, I cannot read it. Yes. Like a bit. I have written everything. Your song was very good, sir. Your shairi was very good, sir. Your singing was fabulous. I really very good, sir. Great, man. I think I have started a song because my set is very small. And This is only yes said. and Yeah, that is poetry. what he said. Not poetry. Shairi was also very good. Okay, start. And start final. Yes. So I will be doing a stand-up comedy on my trip that I went. Come on. So, Come on. yes, so first of all, I would also like to thank the audience in the video for giving such a good support. So, I went to a trip to Wayanad. So, first of all, I lied to you guys. My set is very big. So I will give a background about myself, guys. I am a very lazy boy. I am very lazy, like lazy raised to 100. And I had this mentality that if you try to make someone laugh, and they don't laugh, you should stop laughing them. So what I used to do is I only used to laugh like my relatives and my like my known people, and not my. You are such wonderful audience, but I cannot see you because of this light. So you also very wonderful audience. I really appreciate you. I'm sorry not appreciating you separately. So yes, everyone appreciating. The thing is, now my set is very slow. Now I have to do it. Thank you for you. Your from your face, sun is coming. It's so beautiful. How did you know, ma'am? I have to yes, because in Christ College we have to. I cannot say my name. That was a mistake. In college, the college that I go is very. I will not say anything. Which college? No offense to anyone. Which college? He's not promoting the college. No free promotions. No free promotion. So I used to make guys laugh and I used to stop when they not laugh because I knew my confidence used to my confidence used to be very slow. Like I didn't do it, and so I had this bad attitude or bad mentality that only make those laugh who are laughing, which is very bad. What? It's just a bad. So I'm just giving a background about myself so that you can understand my set well. Because if I start saying my set, you might not connect with me. So because I am very lazy and not the type of guy you think. Very lazy and very lazy. This light is very big problem. Yes, in the previous only 3 lights were there. 4 were there. 4 were there, only 3 were there. This one is not really. Now we want to concentrate now.
Because the thing is, if I move the center of that line, I won't be there. You yourself Yeah. is a content, bro. Yes. My content I will do. No, you yourself is a content, I'm telling you. Thank you for that opportunity. उसका पॉजिटिव एनर्जी देख इसमें पॉजिटिविटी Yes, thank you for that. The thing is very good. And also, thank you. Also, I used to have this thing that I couldn't even this don't like me holding. So I used to have that thing that I couldn't smell anything. So I can't understand the difference between smells. Like if someone said to me that there's a chicken biryani there, I try my level best at it, but I cannot smell it. I just cannot smell it. Anything is there. I only to know two smells. 1 minute. I only know two smells. You fast. Okay. So I only knew two smells which was good and bad. Like if something hits my nose, I supposed to know that it was bad because I couldn't resist the smell. And something good was like if something hits my nose, I feel good, like I want to smell more. So because I have only 2 minutes, I will do it. The thing is, I do like first of all, I came to do comedy. I used to do only point wise. So the thing is, it's very hard to remember, and I always have to look on my hand and this sheet of paper. But now I am doing like a story version, so it is easy to remember now. But still I am seeing my hands. So I think my time is over, guys. So since you guys were it's very long time. No one laughs at my comedy. You guys laughed since it's a very good time that English is not coming. It's been a long time since I had a very wonderful audience. Thank you for audience. Continue kar bhai. तेरे को 10 बजे तक Thank you, audience. So I will do one Shah Rukh Khan pose and you can laugh. I will count down from 20 to from again English word. Back from 20 and I will welcome your host 2019, 18, 17, 16, 17, 14, 15, 27, 11. What was that? अरे भाई तो नाम बता रहे मेरे को तो नाम बता अपना पता है गाइस ये ना लास्ट स्टेज पे आया था ठीक है तो लिटरली लाइक आई वाज लाइक इसे रोस्ट करना है मेरे को बहुत प्यारा सा बंदा था ठीक है अब माया लग रही है इस पे यार कि क्यों which like Alan नाम है इसका ठीक है which college do you study The thing is, I cannot say it in front of a camera. If something happens, no it won't be recorded don't worry Yeah, I'll done. Christ. no because from your speaking auntie could trigger Because I am also a Christ, right? Because we have to speak in English. I have no other way to communicate with other fellow. With the Malu accent. तो क्यों छोड़ के गया भाई स्टेज को मेरे को मजा आ रहा था आजा कम for 2 minutes more आजा show me your chat first कोरोना फीवर लिखा है बंदे ने That is my starting of. where was that That I did. तू कर पूरा कंप्लीट करेंगे I do 2 minutes. no you do You have to. we'll give you two slots I think it's this one, no? I don't know. This is the one. Making, not making. No, for Alan it will. For you it will. So this is also the first time I am called back to stage and I'm coming there and I'm coming back to stage. I really don't know what makes you guys laugh because
you should understand me. I do this like most of the day, every day. Like no one laughs. So if even if you guys laugh, I don't know why you guys laugh, and I don't know how I can do this continuously. Like I don't know like the particular thing that you guys love. But it has been a very good experience today. I had very good support today. First day I came, I had very good support today. The audience is also good. Performance is also good, and it's very good audience today. So the thing is, when you are very nervous, you cannot actually read anything. Yes, so the thing is, to say that why not thing, you have to understand about me. So I am giving a very big introduction about me, so the thing is, if I say in the storyline, you will remember when you go home. So that's why I am using the story thing. Oh, big silence. So and I used to be also like very lazy, and my friends used to. That's the main highlight about me. I was not like this. I was very lazy. कोरोना फीवर उसको लेकर आ पहले. Corona fever is like last end thing. The corona is also in the middle also, but it is numbered 8. Now I am number 4. You complete all numbers. So number 1 was lazy, 2 was laugh, 3 was smell, 4 was sound. So sound. My pronunciation is very bad, man. Yeah, Kerala accent. I love it. I love my native. We love Kerala too. And the thing is, the main idea about me was I was very lazy. Like, if any car goes by, my friends used to know which car it is by just looking at the sound, no, by hearing at the sound. You can't look at it by hearing at the sound. You just know it. But in my case used to be like, even if I see a bullet sound, I used to think twice if it's bullet. Now is the real life of stand-up comedy. No one loves this. This is the thing of stand-up comedy. Number 2 minutes. You can just store it. No one will do. So the numbers. What did I write about numbers? Yes, I was also very afraid of numbers. Not standalone numbers, but if you actually connected with a disease, then I used to be very like that disease used to be extra fearful for me. You tried it. You had corona. You had no, sir. But the thing I was afraid of corona, sir. Everyone was. I was corona negative. Corona negative and very very afraid, sir. Hey, you can see this like na. इसे क्या है रे? Oh my God! That's the thing of tension. You cannot just read it. and I don't know my handwriting also. I have written parking. Why did I write parking? No, it's like background of So maybe I need it. So phone. So phone also was like once upon a time in my life there was an incident which started like I accidentally because my father worked very hard. I will give my shout out to my father. He worked very very hard. So he was the kind of earning thing of my family. He was the earning pillar of my family and my mother also. So he used to like work very hard, and he had a postpaid phone. So what I did was like, because if You are I'm out of taking box. anyone's, You are out of box, bro. if I'm so what I did was it was postpaid phone. I think I am the only person who has the intelligence to do this. I accidentally on the mobile data. So what happened was after 2-3 days, my mother and father got an email. Not email, a message I think. So the message was like 10,000 rupees something they had to file. So they started discussing whom to blame. And obviously they looked at me because even though I was lazy, I was naughty.
So they looked at me and I don't know, I did it. I had that innocent face, that very good innocent face, that you think that if you see my face, you think I didn't do it, but you know I did it. So like that, my father and my mother, she just posted the office so that we can get a relief, but I think they got a relief. But after that time, okay. So after that time, I was really afraid of phone. COVID-19 was there. I was really afraid of COVID-19. Really afraid of COVID-19, and that's what I wrote about it. Now my comedy starts, but my time has been delayed. So I will bring your wonderful host back again and SPP vibe again. हेलो एवरीवन, मेरा नाम यजदान है। तो मैं वैसे तो नज़में लिखता हूँ, मैं पोइट्रीज लिखता हूँ, शायरियाँ लिखता हूँ, पर आज एक मेरी पहली गज़ल बांटना चाहूँगा आप लोगों से। तो गज़ल का नाम है कोई नो यकाई। इसका ये एक जापानीज फ्रेज है जिसका मतलब होता है प्रेमोनिशन ऑफ लव। मतलब एक ऐसा एहसास जो वन साइडेड लव तो नहीं है, पर एक इंसान से मिलके आपको पता होता है कि इससे तो प्यार होना ही है। तो गौर फरमाइएगा कि इसका पहला शेर है, पहला मक्ता है कि पहली मुलाकात में इश्क का शोर तो कहीं ना था, पहली मुलाकात में इश्क का शोर तो कहीं ना था, मगर दिल की गहराई में खामोश सा राज था। दूसरा मक्ता है, इसमें एक शब्द आता है लफ्ज आता है मुस्तकबिल। तो मुस्तकबिल का मतलब होता है फ्यूचर। तो लिखा कुछ यूं था, अर्ज किया है कि निगाहों का रुक जाना भी कोई आम पल न था, उन पलों में मुस्तकबिल की हल्की सी एक आवाज था। तीसरा मक्ता है, गौर फरमाइएगा, ये मेरा फेवरेट मक्ता है बोलूंगा। तो लिखा कुछ यूं था कि ना प्यार हुआ ना इजहार हुआ ना कोई जज्बात था, ना प्यार हुआ ना इजहार हुआ ना कोई जज्बात था, पर दिल के किसी कोने में एक बेनाम सा ठहराव था। उसके बाद लिखा और एक शेर है इसका कि इसमें आता है नक्श नुमा, मतलब है मेमोरी, याद, किसी को याद करना। तो लिखा था कि जरा मुस्कुरा के गुजरी थी तुम, बस इतना याद था कि उस मुस्कुराहट में आने वाले दिनों का नक्श नुमा था। बेआगाज का मतलब है विदाउट बिगनिंग, ये दूसरे शेर में आता है, इसके बाद वाले शेर में आता है बेआगाज। इसका मतलब होता है विदाउट अ बिगनिंग, मतलब शुरुआत नहीं। तो मैं पूछूं किसको ये कैसा रिश्ता बेआगाज है, बेआगाज था। मैं पूछूं किसको ये कैसा रिश्ता बेआगाज था, तुमसे मिलकर लगा ये प्यार नहीं, प्यार का एक एहसास था। एक नज़मी, एक शेर लिखा था, मतलब दो, इसका है तो नज़मी बोल सकते हो। एक शेर लिखा था कि ला हासिल मोहब्बत पर जो मोहब्बत हासिल न हो। तो अर्ज किया है, इजाजत दीजिएगा कि मेरे दिल ने तेरे नाम की महफिल सजा कर भी देख लिया, पकड़ लीजिए, आपको शेर समझ आ जाएगा। तो मेरे दिल ने तेरे नाम की महफिल सजा कर भी देख लिया, हर धड़कन को तेरे हवाले बना कर भी देख लिया। मेरे दिल ने तेरे नाम की महफिल सजा कर भी देख लिया, हर धड़कन को तेरे हवाले बना कर भी देख लिया। तू मिला नहीं मगर उम्मीद का दिया बुझने ना दिया, तू मिला नहीं मगर उम्मीद का दिया बुझने ना दिया, इस्लाह हासिल मोहब्बत को हमने दुआ बना कर भी देख लिया। तू मिला नहीं मगर उम्मीद का दिया बुझने ना दिया, इस्लाह हासिल मोहब्बत को हमने दुआ बनाकर भी देख लिया। दिल को समझाने की हर चाल, दिल को समझाने की सारी चालें चला कर भी हमने देख लिया, यादों के सहरे में खुद को भुला कर भी देख लिया। दिल को समझाने की हर चाल हमने चला कर भी देख लिया, यादों के सहरे में खुद को भुला कर भी देख लिया। तुझे पाने के खातिर किस्मत से हर रोज हमने की बहस, तुझे पाने के खातिर किस्मत से हर रोज की हमने बहस, और इन किस्मत की लकीरों को बार बार मिटा कर भी देख लिया।
वो मिला तो नहीं मगर उम्मीद का दिया बुझने ना दिया, इस लाहासिल मोहब्बत को हमने दुआ बना कर भी देख लिया। तो नज़्म ऐसी है कि हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी से मोहब्बत जरूर की है। मोहब्बत का इजहार किया है किसी चेहरे से, किसी आवाज से, किसी ख्वाब से। मेरी मोहब्बत एक मिनट ये नहीं है। हाँ ये तो कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो ना लफ्जों में होता है, जो ना रिश्तों में होता है और ना किसी सिलसिले में, फिर भी उसकी हर बात, हर खामोशी दिल को छू जाती है। वो बोले या ना बोले, उसका सिर्फ होना ही काफी होता है। आज एक नज्म सुनाना चाहूंगा, इसका नाम है दोस्ती से मोहब्बत तक। तो ये नज्म उसी अनकहे रिश्ते का एहसास है जहाँ दोस्ती अपने आप में मोहब्बत से कम नहीं है। तो लिखा कुछ ऐसा था कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ गम है जिंदगी में, ऐसा तो नहीं है कि कुछ गम है जिंदगी में, फिर भी लगता है कुछ कम है जिंदगी में। ऐसा तो नहीं है कि कुछ गम है जिंदगी में, फिर भी लगता है कि कुछ कम है जिंदगी में। तेरे बिना हर लम्हा बेमकसद सा लगे, तेरे बिना हर लम्हा बेमकसद सा लगे, हर खुशी में भी एक खामोशी सी बहे। ना खून का रिश्ता ना खानदानी निशानी, ना खून का रिश्ता ना खानदानी निशानी, मगर तू बनी मेरी सारी जिंदगी की कहानी। तेरी हर बात में था एक जज्बे खास, तेरे होने से मिलता था जीने का एहसास। तेरी सोहबत में था एक सुकून का जहां, दिल के हर कोने में बसा था बस तेरा ही निशान। ना जरूरत थी किसी और सहारे की मुझे, तेरी हर अदा लगती थी रहमत से मुझे। हर दुआ में तेरी खैरियत का जिक्र रहे, मेरे लफ्जों में तेरी दोस्ती का फिक्र रहे। तेरा हर जज्बा था एक पाक नियाज, तू बनी मेरे दिल का सबसे अजीज राज। बेखबर था मैं कब तू जरूरत बन गई, दोस्ती से बढ़कर तू मेरी मोहब्बत बन गई। तुझे देखता हूँ तो दिल खामोश रह जाता है और आंखों के जरिए सब कुछ कह जाता है। एक और पोएम है which I want to dedicate it to my mother। तो नाम है मेरी माँ। ये पहले लोग सुन चुके हैं पर आज फिर से सुनाना चाहूंगा। तो लिखा था कि मेरी माँ मुझे रोज एक कहानी सुनाती है, मेरी माँ मुझे रोज एक कहानी सुनाती है। कहानी में ना जाने क्या कह जाती है, शायद जो भी सुनाती है अपनी कहानी बताती है। अपनी कहानी में अपने दुख को शायद छुपाती है, पर हर वक्त मुस्कुराती है। बिल्ली जैसी उनकी आंखें देख मुझे मुस्कुराती है। मेरी माँ इतनी प्यारी क्यों हो तुम, गुलाबी होठों से अपने मुझे डांट बहुत सुनाती है। मेरी माँ इतनी प्यारी क्यों हो तुम, देर से जब मैं घर को आता इंतजार करके सो जाती है। मेरी माँ इतनी प्यारी क्यों हो तुम, पर शुक्रिया मैं करता हूँ आपका मुझे कहानी सुनाने के लिए। शुक्रिया मैं करता हूँ आपका मुझे कहानी सुनाने के लिए, कहानी में छुपा कर खुद को मुझे जीना सिखाने के लिए। शुक्रिया माँ कि तुम इतनी प्यारी हो तुम। Thank you everyone, that's all for me. This is like my first time doing that. Really nervous, but then your jokes were like an appetizer for me, so yeah. Thank you for that. So yeah, let's do this. कॉलेज से आया ना डायरेक्ट? कॉलेज से नहीं, डायरेक्ट नो भैया। I came direct आया। Can we go again, please? Deep in the night, I need your light. I'm lost without it, so lost, so lost. And every time I try to live my life without it, I'm lost, so lost. You are the stars, the moon, the sun.
Leave it how you live it, get it how we get it. Don't you ever try to switch it, you just gotta keep it going on and on and on and on. Deep in the night, I need your light. I'm lost without it, so lost, so lost. And every time I try to live my life without it, I'm lost, so lost. Shine on, give him that love, give him that you make him go crazy. It's never enough. It's like a drop in the ocean. I need you close, so don't ever go. Yeah, I'ma go crazy. I need you to know you don't need to change. Oh, don't get love and on and on. Deep in the night, I need your light. I'm lost without it, so lost, so lost. And every time I try to live my life without it, I'm lost, so lost. Shine on, shine on. Shine on. I can live my life. I can live my life. Yeah. Shine on. Shine on. Yeah, yeah. Ooh, yeah. Without it, so lost, so lost, so lost. I try to live my life without it. Oh, shine on. Thank you. First song. Second song, it's a Hindi song. It's called Subhanallah from the movie Ye Jawani Hai Diwani. Come on, guys, we'll vibe. Once again. Amal. Yeah. Retake. Yeah. People, please don't move around like in front of the camera because it's already recording. Not like yeah. No worries, no worries. For now. एक दिन कभी जो खुद को तलाशे तेरी नजर से तू जरा आए आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है तुझको दिखाऊं मैं जरा आइए कान कहीं सी दास्ता दास्ता कहने लगेगा सुभान अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह ऐसा हुआ सुभान अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह ऐसा हुआ
मेरी खामोशी से बातें सुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें सुन लेना। ओ मेरी खामोशी से बातें सुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें सुन लेना। जो आज लिखती हूँ तारीफ मेरी खामखा, तोहफा है तेरा मेरी अदा। एक दिन कभी जो खुद को पुकारे, मेरी जुबां से तू जरा आई रे, तुझ में छुपी सी शाहना, तो ये ना में जरा आई रे। ये दो दिलों का वास्ता वास्ता ना बुझेगा आएगा। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। Thank you. Okay, as you all know, my name is Arshia. मैं बहुत समय बाद आई on the stage. That is from मस्ती कहानी. तो आज है, बस एक झिझक है यही हाले दिल सुनाने में, बस एक झिझक है यही हाले दिल सुनाने में, कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। हस्बे आरज़ू मतलब something which you actually wish for and you do not get. तो उस पे कुछ लिखा था, हस्बे आरज़ू कोई साथी ना मिला, दिल के सफर का कोई राही ना मिला, सबको मिली मंजिल अपनी अपनी, बस हमको ही अपने कोई काबिल ना मिला। कभी किसी ने कहा था कि बेआवाज सिसकियों से बेहतर सजदे में उसके सामने चिल्ला के रोना, तो उस पे ही कुछ लिखा था बहुत पहले। Yes, मकाफात अमल, it could be said as कर्मा, तो हम लोग उसको मकाफात अमल के हिसाब से बोलते हैं। तो इस पे कुछ लिखा है, जो दिल पे गुजरी मैंने चुपचाप रब को सुना दिया, जो दर्द मिला उसकी हर बात उसकी मर्जी पे छोड़ दी, मकाफात अमल का हिसाब मैं क्यों करूं, ये अदालत उसकी है, बीज चाहे किसी का हो फिर भी फसल उसी की है। मैं नियत के साथ चली जाऊं, बस इतना है मेरा सिला, बाकी सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया, जो होगा वही भला। एक और कुछ लिखा था, अर्ज है कि रात की तन्हाइयों में अक्सर मैं सोचती हूँ कि दिल इतना बेचैन क्यों रहता है, ख्वाबों के रास्ते पर चलते चलते हर मोड़ पर सिर्फ तू ही क्यों दिखता है, चांद भी कभी तुम्हारी मुस्कुराहट सा लगता है और सितारे तुम्हारी खामोश बातों का झिलमिल साया, हर पल हर लम्हा कुछ ना कुछ तुमसे जुड़ा हुआ, जैसे मेरी सांसों ने तुम्हारा नाम ही सीख लिया। मैं खुद से पूछती हूँ कि रिश्ता क्या है, क्यों है, और कैसे इतनी गहराई से मुझे बांध लेता है, फिर दिल चुप होकर सिर्फ एक ही सच बोलता है, वजह ये नहीं है कि मुझे सहारे की जरूरत है, वजह ये है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। Before I conclude, ये बोलूंगी कि यही गमे जिंदगी है, बस
कि उसको उसी की मुझे हसरत है। यही गमे जिंदगी है कि बस उसी की मुझको हसरत है। मोहब्बत हूँ मैं और वो उसी मोहब्बत और उसको उसी मोहब्बत से नफरत है। ಪ್ರೇಮ ಬರಹ ಕೋಟಿ ತರಹ ಪ್ರೇಮ ಬರಹ ಕೋಟಿ ತರಹ ಬರೆದರೆ ಮುಗಿಯದ ಕಾವ್ಯವಿದು ಸವಿದರೆ ಸವೆಯದ ಸಾರವಿದು ಹಾಡಿದರೆ ಮರೆಯದ ಹಾಡು ಇದು ಪ್ರೇಮ ಬರಹ ಪ್ರೇಮ ದಿನ ನೂತನವೇ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ಜೊತೆ ಇರುವುದೇ ಪ್ರೇಮ ದಿನದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಮ ಯಾರೋ 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 ನಾವೀಗ ಸೇರಿದರು ಪ್ರೇಮದ ಸೆಳೆತವೇ ಕಾರಣವು ಸಾವೇ ಹೂವಾಗಿ ನೋವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವೀಗ ಸವಿದಿರಲು ಪ್ರೇಮದ ಸತ್ಯವೇ ಪ್ರೇರಣವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರೇಮ ಬರೀ ನೂತನವೇ ಪ್ರೇಮ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ ಬಿಡುವುದೇ ಪ್ರೇಮ ಹೆಸರುಳಿವುದೇ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ಬರಹ ಕೋಟಿ ತರಹ ಪ್ರೇಮ ಬರಹ hands up in the air. ಒಂದೊಂದೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾತು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಕವನ ನನ್ನಿಂದ ನಾ ದೂರ ನಿಂತು ನಾ ಕಂಡೆ ಮಾತಾಡೋ ಮೌನ ಓದುವುದು ಹೃದಯ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದು ನಗುವೆ ನೀನೇಗೆ ಮಾತಾಡು ಓ ಮೌನ ಮಾತಾಡು ಒಂದೊಂದೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾತು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಕವನ. Thank you. Fans request. Have somebody in call. ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಚಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ತಿಳಿತಂಪಲ್ಲಿ ಓಲವೇ ನೀನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಿನಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನೆದೆಯೊಳಗೆ ನೀಡಿತು ಜಡಮನದ ಮೌನ ಮುರಿದು ಬಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ನೀ ಬಗೆದು ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ನೀ ತೆಗೆದು ನನ್ನನ್ನೇ
ಆವರಿಸು ನೀ ಬೇಗೆ ನೀ ಹರಿಸು ಮನದಾಳದ ಉಲ್ಲಾಸದಿ ಕೂತಲ್ಲು ನೀನೆ ನಿಂತಲ್ಲು ನೀನೆ ಎಲ್ಲಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಸಖಿ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಕನಸಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಎಲ್ಲಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಸಖಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನೆಗಳು ನೀನೆ ನಾಳೆಗಳು ನೀನೆ ಎಲ್ಲೆಂದು ನೀನೆ ಸಖಿ ಆವರಿಸು ಮೈಲುಂಬೆ just ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನದೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ನೂರೆಂದು ನೋವಲ್ಲು ನೀ ಬಂದು ಜೊತೆಗಿದ್ದೆ ಕಾರ್ಬೋಡ ಕವಿದ ಬಳಕೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ತಂದು ಸುರಿದೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಉಳಿದು ಎಲ್ಲೆ ನೀ ಹೋದೆ ಕರಿಕರಿಸಿ ನೀ ಬಾರೆ ಎದೆಗೂಡಿನ ಉಸಿರುದಿಲೆ ನೋವಲ್ಲು ನೀನೆ ನಗುವಲ್ಲು ನೀನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಸಖಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಕನಸಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಎಲ್ಲಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಸಖಿ ನನ್ನ ನೆನ್ನೆಗಳು ನೀನೆ ನಾಳೆಗಳು ನೀನೆ ಎಲ್ಲೆಂದು ನೀನೆ ಸಖಿ ಆವರಿಸು ಮೈದಲ್ಲೇ just ಮಾತಲ್ಲಿ कि अक्सर औरतों की आवाजों को दबा दिया जाता है, ये उस पर्सपेक्टिव से है। औरत कभी आवाज अपने आप से नहीं दबाती है, उसको दबा दिया जाता है। आवाज उठते ही आवाज उठाना बंद कर देती थी वो। मन में दुखी रहकर भी खुश कैसे रह लेती थी वो। आंखों में आंसू रखकर भी हंस कैसे देती थी वो। आज ना उसका आवाज किसी के लिए उठता है, ना ही अपने लिए। किस दर्द से शायद गुजर रही थी वो। ऐसा क्या बीता उसके मन पर, ना वो नरम है ना ही कठोर। बस जितनी मिलती है खुशियाँ लेती है वो बटोर। उसकी कितनी चाहते थी, उसकी कितनी मिन्नतें थी, सुन सका न कोई, समझ सका न कोई। न जाने कैसे सब संभाल कर संभल जाती थी वो। क्या ये उसकी ताकत थी या उसकी कमजोरी? खुद के लिए तो नहीं, पर दुनिया को लगता कि ये उसकी खुदगर्जी थी। अभी औरत जो भी करे सबको लगता है कि वो खुदगर्ज है। अभी वो आवाज ना उठाए तो उसकी कमजोरी है, अगर वो आवाज उठाए तो वो खुदगर्ज है। तो इस नजरिए से था ये। और उससे हटकर थोड़ा सा मोहब्बत के ऊपर आते हैं। और हर लोग मोहब्बत को सबसे कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं उसको सरकारी दफ्तर से कंपेयर करती हूँ। अभी सुनिए, पता चलेगा। मोहब्बत को मैंने सरकारी दफ्तर समझ लिया, फॉर्म भी भर दिया, पर अप्रूवल अभी तक नहीं मिला। और खैर जाने दो, मैं आपके सामने एक और किस्सा खोलती हूँ। वो है सरकारी मोहब्बत। अर्ज गुजार करते फिरते हम दाखिला कराया दिल का मामला एक। तमाम मामले थे मगर हमसे फिर भी न संभला एक। मोहब्बत करते फिरते हम सुनाया हाले दिल उन्हें, कहा कि अभी नहीं बाद में देखेंगे। हम तो यूं ही मुस्कुरा दिए, चलिए कम से कम ये तो कह दिए, क्या इश्क कर रहे हैं उनकी झूठी दिलासे से दिल को बहला रहे हैं। सरकारी मोहब्बत कर बैठे हैं शायद,
ये मामला नहीं, तमाम आगे बढ़ रहे हैं। वो वक्त कभी आया नहीं जहां हमने अर्ज गुजार किया नहीं। दाखिला कराया था दिल का मामला एक, खैर छोड़ो, अब तो हो गए अरसे और दिल के टुकड़े अनेक। और मैं ये किस पे है ये नहीं बताऊंगी, आपको बीच में मैं पूछूंगी ये किस पे है, आपको बताना पड़ेगा। और जो वाले पिछले वाले में थे कृपया ना ही बताए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। इसका टाइटल है कभी मत खोना खुद को। मुझे पसंद है सजाना खुद को, सजा के संवारना खुद को, उन फूलों को बालों में लगाना, उनके दिए जेवरों को और उनका हमें पहनाना। कलाइयों में लाल चूड़ी हरी भी कभी कभी पहना पसंद है मुझे, वो सब आज भी। नीले रंग की साड़ी मेरी चांदी के झुमके, याद है जब पहली बार गिरा आई थी मैं गलियारे उनके। उनको उस लाल चांद के समान मेरी बिंदी लगती, निहारते थे वो मुझे पर उनकी नजरें कभी ना थकती। पसंद है मुझे हर वो त्योहार जिसमें रंग हो, उनकी यादें ले चले मुझे स्वर्ग क्षण भर को। आपको क्या लगता है कि ये किसके लिए है? वो तो सही है, कोई और गेस करना चाहता है कि किसके नजरिए से है? पापा, ग्रैंड पेरेंट्स। मेरी ग्रैंड पेरेंट मेरी इंस्पिरेशन रही है इसमें लिखने के लिए। नहीं, वो तुमने बोला था ना लास्ट टाइम स्वर्ग आई थॉट के जी करेक्ट है। फिर भी जॉब नहीं मिल इस रहा है, बात क्या में मुझे फायदा आवड़- चला। फिर पानी में डूब मारूंगी। ठीक है। पसंद है मुझे हर वो त्योहार जिसमें रंग हो, उनकी यादें ले चले मुझे स्वर्ग क्षण भर को। पहनती हूँ मैं उनके नाम का आज मंगलसूत्र, पर हक नहीं है मेरा मुझे पहनने सिंदूर उनके नाम पर। हाँ हूँ मैं विधवा, खोया मैंने अपने साथी को, वो ही मेरे सब कुछ थे, ये मैं खुद से बतलाती हूँ। क्या अधिकार अब नहीं रहा मेरा सजने संवरने पर, यह क्या बात है जो उमड़ आई सिरहाने पर। वो होते तो मेरे लिए गजरे ले आते, कभी फैल जाए कजरा आंखों का तो उसे संवारते। ले आते वो मेरे लिए चूड़ियां भी रंगीन और पहनाते भी जब रात हो चौदहवीं। हंसते और मुस्कुराते मेरे साड़ी के पल्लू के अटकने पर और चिढ़ाते भी उससे ज्यादा मेरे झटकने पर। मुझे पसंद है आज भी सजाना खुद को, सजा के संवारना खुद को, पहनना बालों में गजरा, आंखों में काला कजरा। चूड़ियां भी लाल या हरी, पहनूं मैं वो साड़ी भी नीली, क्योंकि उन्हीं से तो मैंने पाया है मुझको, और कहते थे वो भी कभी मत खोना खुद को। This is my time. Thank you guys. तो यहाँ सब लोग देवदास की तो कहानी जानते होंगे, तो मैंने देवदास की कहानी पर कुछ लिखा था। अबे आज की यहाँ मत लड़ा रहे, थोड़ा वो वही लड़ा रहा है। तो देवदास की कहानी पे मैंने कुछ लिखा था। जब देवदास गया था दुनिया से तो उसकी बाजू की जो मज़ार थी, तो उस मज़ार से एक आवाज़ आई, क्या तुझको मोहब्बत मिली या महबूब मिली, क्या तुझको मोहब्बत मिली या महबूब मिली। देवदास ने बड़ा एक अजब सा सवाल कहा, उसने एक अजब सा जवाब दिया। महबूब की तलाश में निकला था मैं, महबूब की तलाश में निकला था मैं, मगर मेरी मोहब्बत किसी गैर की नसीब बन गई और मेरी आखिरी सांस मेरी महबूब की बाहों में निकल गई। तो देवदास का ये जवाब सुनकर हर मज़ार उठ गई। तो उसके बाद एक शेर लिखा था। उसने मुझसे एक रोमांटिक में कुछ लिखा था कि वो मुझसे हर एक बार एक सवाल करती रहती थी कि मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, मेरी जिंदगी में तुम्हारा मोल क्या है मेरे लिए। तो उस वक्त मैंने उस पर एक जवाब दिया था। कैसे
कैसे बताऊं क्या हो तुम मेरे लिए, सुबह की पहली किरण हो तुम मेरे लिए, इस रेगिस्तान भरी जिंदगी में बारिश की पहली बूंद हो तुम मेरे लिए। अगर तुम साथ हो तो सारा जमाना जीत लूं, ये जज्बा हो तुम मेरे लिए। कैसे बताऊं क्या हो तुम मेरे लिए, मेरे इस अंधेरे भरी जिंदगी में दिए की रोशनी हो तुम मेरे लिए। कैसे बताऊं क्या हो तुम मेरे लिए। गाइस ये कहानी है, उससे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा आप लोगों को। लाइक एवरीवन गाइस वर्क फॉर ऑफिस, मजदूरी करते हैं सभी जन। तो ये कहानी है एक इंसान की और एक दूसरे इंसान की। दोनों ऑफिस में मिले थे और पहले अनजान थे, अनजान से दोस्त बने और दोस्त के बाद में कुछ अच्छे दोस्त बने और अच्छे दोस्त के बाद में कुछ नहीं बन पाए। तो उन चीज़ों की कहानी है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग गिनतियाँ भी गिने साथ ही साथ, 1 2 3 4। तो वो गिनतियाँ लाइक मैं चाहता हूँ आप लोग गिने। तुम्हें पहली बार 3 तारीख को 3 बजे के करीब देखा था। तुम अपने 3 दोस्तों के साथ टीटी खेल रहे थे। पिछले 4 से 5 सालों में किसी ने इतनी बार सोचने पर मजबूर नहीं किया था, लेकिन तुमने तो 4 से 5 सेकंड में ही रूह बदल दी थी। हर रोज तुम्हारे साथ 6 अंकों का गेम खेलना और 6 लफ्ज पकड़ाने, इस चीज का आगाज रहता था। लेकिन तुमसे 6 सेकंड भी बात नहीं हो पाती थी। ऑफिस से 7 बजे निकलते वक्त मेरी नजर सभी 7 कोनों में तुम्हें ढूंढती, लेकिन शायद तुम 7 बजे से पहले या 7 बजे के बाद निकल जाती। सुबह के 8 बजते ही आगाज रहता कि कब जाऊंगा ऑफिस, कब जाऊंगा ऑफिस और कब खेलूंगा 8 गेम तुमसे। 9 तारीख को 6:09 पर हमने अपना इंस्टाग्राम एक्सचेंज किया था और मैंने मोहतरमा से पूरे 9 मिनट की बातचीत की थी। देखते देखते वक्त गुजर गया और 10 तारीख को मैंने तुमसे 11 बजे के करीब पहली बार शायद से 7 घंटे 1 मिनट और 2 सेकंड की तरह से बातचीत की थी। मैंने आज तक किसी से इतनी लंबी बातचीत नहीं की है, वो 3 लफ्ज नहीं कहे, लेकिन तुमसे मिलने के बाद तुम्हें वो 3 लोगों में शामिल करने का मन करता है जिसके सामने अपना सर झुका सको। मेरी दादी, मेरी माँ और फिर तुम। मुझे हमारे 2 बच्चे चाहिए। बेटी मेरी होगी, बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी। इसका सभी का क्रेडिट तुम्हें रहेगा और मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ एक जन्म नहीं, 7 फेरों की तरह, वो 7 घंटों की तरह सभी 7 जन्म साथ निभाना है। 7 कस्मों के साथ क्या तुम मेरी बन पाओगी क्या? पता नहीं। गाइस ये छोटी सी कहानी जैसी थी। आई होप लाइक सभी एक दूसरे लाइक हम एक दूसरे से लाइक आते हैं, अक्रॉस आते हैं। कभी किसी को प्यार होता है तो कभी किसी को नफरत होती है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि नफरत भी एक प्यार होता है और प्यार भी एक नफरत होती है। एक छोटी सी लाइन होती है, लेकिन वो एक लाइन जो होती है वो भी एक प्यार ही होता है। जैसे हम अपने पापा मम्मी से करते हैं, भाई बहन से करते हैं, उसी तरह एक सामने वाले से करते हैं। प्यार किया करो, बहुत अच्छी सी चीज होती है। सो ना ये कुछ प्यार की बातें लिखा है समर्था ने। सो मैं अपने अल्फाजों से अपने 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 जवान से इसे बताना चाहूंगा। बहुत सस्ती थी वो चूड़ियाँ जो मैंने तोड़ी थी, बहुत महंगा था वो दिल जब तुमने तोड़ा था।
चूड़ियों का शीशा तो जमीन पर बिखर गया, पर दिल के टुकड़े सीने में चुभ गए। वो खनक कुछ पल में खत्म सी हो गई, पर दिल की सिसकियां तो अब भी गूंज रही हैं। बाजार से नई चूड़ियां फिर भी ले आऊंगा, पर टूटा हुआ ये दिल किसी दुकान पर जोड़ नहीं पाऊंगा। मैं कुछ एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, और वो कहानी के बाद में कुछ 4 पंक्तियां बताना चाहूंगा। कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि 2 इंसान मिलते हैं, और 2 इंसान इस तरह से मिलते हैं कि उसकी कोई जगह ही नहीं है, मतलब कि हम एक सोशल मीडिया की तरह से मिलते हैं। और पहले बातचीत होती है, बातचीत होते होते हम पहले दोस्त बनते हैं, और वो दोस्त के बाद में वो दोस्ती कुछ अच्छी दोस्ती में बदल जाती है। दोस्ती इतनी अच्छी होती है कि एक हफ्ते के अंदर में एक दूसरे को एक अपने बारे में समझने लगते हैं। कुछ अलग सी फीलिंग होती है, और उनसे बात करने की तलब भी होती है। और अब बात की तलब होते होते कोई इंसान एक इतनी दूर वाली जगह से हमारे लिए अपनी जगह छोड़कर हमारे लिए भी आते हैं। क्या एक अच्छी सी फीलिंग होती है ना, जब आपके लिए कोई इतना एफर्ट्स डाले, आपके लिए इतना प्यार मोहब्बत करे। और उसके बाद में बस एक चीज ही नहीं, भले ही लोग बहुत आते हैं बीच में, भले ही चीजें बहुत होती है, लेकिन प्यार एक ऐसी जगह होती है जो इन दोनों को बांध कर रखती है। हमें भी किसी ने ऐसे ही बांध कर रखा था, हालांकि उनसे वीडियो कॉल पर अभी बातचीत हो रही है, लेकिन क्योंकि उनका एक कहना था कि हम उन्हें ये चीज लाइव सुनाएं, तो कोशिश की कि चीजों को स्लाइड रखा जाए और उनके लिए 4 पंक्तियां लिखा जाए। क्योंकि जब भी वो गुस्सा होती है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ शांत सा हो गया। तो उनके लिए ना 4 पंक्तियां हैं। सुनते ना, वो हमेशा ना हमसे बात करते करते रूठ जाती है। तो उन चीजों के लिए हमने उन्हें दर्शाने के लिए लिखा था कि हमारी कश्ती आप बन जाओ, नजारा बदल जाता है। हमारी कश्ती आप बन जाओ, नजारा बदल जाता है। बातें हमसे आप कर ले, दिल हमारा बन जाता है। हमने सोचा था कि हम एक अच्छी सी जगह पर जाएंगे, और मैंने यूजुअली सोचा था, सपना देखा था कि काश मैं अपनी प्यार मोहब्बत के साथ में, महबूबा के साथ में कुछ ऐसी जगह जा पाऊँ जहाँ पे मैं एक अच्छा सा टाइम निकाल सकूँ उनके साथ में। तो एक शिमला जैसी ठंडी सी जगह में जाने की सोचा था। तो उस टाइम पे कुछ लाइंस लिखा था, लेकिन ये नहीं था कि ये लाइंस मैं उनके लिए दर्शाना चाहूंगा, लेकिन आज उन्हें ये लाइंस लाइव बताना चाहूंगा। टोपी चाय और प्यारी प्यारी जैसे मफलर और तुम्हारी निगाहें। शिमला की ठंडी रातें हो, एक दूसरों का साथ, और ऐसी बर्फीली ठंड में अपने हाथों में तुम्हारा हाथ। हम दोनों का प्यार और हमारी प्यारी बातों की बरसात हो। वो ठंडी प्यारी सी रात, बर्फीली ठंड और हमारे प्यार की बरसात। क्या होता है ना कि अक्सर वो ना हमसे ना दूर जाने के लिए बहुत तड़पती है, क्योंकि उन्हें गुस्सा जो आ जाता है। तो इस दिवाली मैं उनसे बहुत दूर था, तो उस वक्त में ना मैंने कुछ दर्शाने की कोशिश करी थी। इस दिवाली तो बड़ी दूर है, शायद इसलिए यादें दुगनी आ रही है। तेरी प्यारी बातों की दूरियां और ज्यादा महसूस होने लगती है जब तेरी तस्वीर फिर से सामने आ जाती है। इस दिवाली तो बड़ी दूर है,
इसीलिए बहुत मिस हो रही है। अब देखो क्या होता है ना कि जब हम प्यार करते हैं सभी कुछ सही से चलते रहता है, लेकिन प्यार करते करते ना बहुत सारे एरर्स आते हैं हमारे लाइफ में। कभी हमारे घर वाले तो कभी बाहर वाले, कभी तीसरा इंसान तो कभी चौथा इंसान। तो इसी चीज को ना लोग आए बीच में, तो उन चीजों को दर्शाने के लिए 4 पंक्तियां लिखा था कि दुनिया ने तो बहुत कोशिश करी हमें अलग करने की, दुनिया ने तो बहुत कोशिश करी हमें अलग करने की, तोड़ने की, जलाने की, जुदा करने की। तुमने हमारा साथ दिया, इसीलिए शायद दिल ने हमेशा ख्वाहिश करी हमें तुम्हारे और पास आने की। जाते जाते एक छोटी सी शायरी इनके लिए, और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। हम जब प्यार करते हैं ना तो हम प्यार को जताते नहीं, हम कहते नहीं कि भाई मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे आपसे प्यार करता हूँ। तो हमने कुछ लिखा था, कभी जताते नहीं, कभी दिल मानता नहीं, कभी दिल मानता नहीं, धड़कन रुकती नहीं, कहने को हिम्मत होती नहीं, क्योंकि मोहतरमा हम आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपको कभी जताते नहीं। एक आखिरी जाते जाते या वाइंड अप करें, सुनना है? चलो हाँ, बोलो क्या सुनना चाहोगे? Announcement. वो गलती मतलब हमसे गलती होती है, सभी से गलती होती है ना। तो मुझसे बीच में एक बार एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जिससे हम टूटते टूटते रह गए थे। तो उस वक्त 4 पंक्ति लिखा था कि मिलकर बात, क्योंकि अब वो दूर रहती है हमसे, बहुत दूर रहती है, तो उसके लिखा था कि मिलकर बात कर लेते हैं, चीजें सुलझ जाएगी, मिलकर बात कर लेते हैं, चीजें सुलझ जाएगी, गलतियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद इस शायर को एक छोटी सी माफी मिल जाएगी। माफी जिनसे चाहिए उनसे मिल जाए, काफी है। आप किसी की तारीफ करते हो तो किस तरह से तारीफ करते हो? अगर हम किसी को तारीफ करना चाहे तो हम इस तरह से करेंगे कि मुलाकात किया करो, 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 रौनक आ जाती है, जरा सा मुस्कुरा दिया करो, हमारे अंदर जान आ जाती है। एक छोटी सी शायरी है, मैं चाहूंगा कि वो सुने और आप लोग भी सुने। ये एक छोटा सा प्रपोजल है। वो हम बतलाए तो हमसे बातें करोगे क्या? हम बतलाए तो हमसे बातें करोगे क्या? हम पूछे तो साथ रह कर ही से आंखों से इशारे करोगे क्या? गलतियां हुई तो माफी मिल जाएगी क्या? प्यार हो जाए तो छुपाओगे क्या? और अगर इस स्टेज पे यहीं पर खड़ा होकर कन्फेस कर दिया तो मान जाओगे क्या? मान जाओगे क्या? उसने गेस करा। Thank you guys for having me. It was a lovely time, lovely evening.